करती हूँ मेरे जिंदा खुदा, वहां नेगेटिव करना मुबारक तेरे साथ, मदद सहायता करना मेरे जिंदा खुदा। आज का कलाम हमारी जिंदगी को बदल के रख दे मेरे जिंदा खुदा। आज का कलाम हमारी जिंदगी में एक नवा रेवलेशन लेके आए परमेश्वर। हम सबको आज के कलाम के द्वारा परमेश्वर एक मन, एक चित्त, एक सोच कर देना मेरे जिंदा खुदा। हम सबका विचार एक ही हो कि हम आपके राज्य को बढ़ाएं मेरे जिंदा खुदा। आज का कलाम मेरे जिंदा खुदा जो आपने अपनी आत्मा के द्वारा दिया है मेरे जिंदा खुदा, मैं ना बोलूं, आपका आत्मा बोले मेरे परमेश्वर। एक बार फिर मैं अपने आप को बड़ा जिसमें कवर करती हूँ मेरे जिंदा खुदा, आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगती हूँ अपनी जुबान के ऊपर, अपनी सोचों के ऊपर परमेश्वर। मैं ना बोलूं, आपका आत्मा बोले, यीशु मसीह नासी के नाम से, आमेन आमेन आमेन। वेलकम वेलकम परमेश्वर दी हजूरी दे विच वेलकम करते हैं। आज का कलाम है एक मन, एक चित्त, एक इच्छा। परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜੇ ਦੋ ਜਨ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋ ਜਨ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਦੋ ਜਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੋ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲ? ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵਧੇਗੀ ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 21 ਡੇਜ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ? ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵਧਦਾ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਖੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 7 ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਤ, ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਊਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਝੁੰਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ੇਰ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁੜਕੁੜਾਹਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੂਗੇ? ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਔਰ ਹरून ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚਰਵਾਹੀ ਕਰ। ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੌਲੁਸ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ? ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਆਏ। ਅੱਜ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫੈਮਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਰਾਤੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਫੈਮਲੀ, ਹੁਣ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਮਲੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਪੌਲੁਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਲੀਪੀਓ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਰਿੰਥੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏ? ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਐਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਕਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਦੁਆਈ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
पर अज वो दिन आया कि एक मन के उत्ते जिहड़े दुष्ट भी एक मन हो जाते हैं। कदी नोट किया जो लड़ाई होंदी है कौम कौम कितना कट्ठी हो जाती, एक मन हो जाते, चाहे कुछ पता ही नहीं होंदा। दुष्ट प्रकाशित वाक्य च भी लिखे है, दुष्ट भी एक मन हो गए, युक्ति निकाल दे और अपना की किया, अपनी जिन्नी सामर्थ्य अपनी जिन्नी ताकत सी उस पशु नु दे दी। कहते दुष्ट ने मेरे लिए युक्ति बनाई एक मन होके। दुष्ट एक तो नहीं आंदियां स्पिरिट, किन्नियां स्पिरिट्स आ जांदियां, युक्ति बना के एंट्री हुंदी है। ਅਸੀਂ ਕੀ कर रहे हैं अज, ਅਸੀਂ एक मन है, ਅਸੀਂ अज एक सोच हाँ, ओ मेरा ओ मेरा ओ मेरा ओ मेरा, ओ पास्टरां दे पिछे लड़ते फिरदे हैं। चिंगारी देने की गल है, चिंगारी हल्की जी दे दो, कदी देखा करो। मैं कदी भी वो चीज़ों को सुनती नहीं, मैनू कोई है ही नहीं। हल्का एक पास्टर चिंगारी दिंदा, दूसरा अपने आप ही फट 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 जाते है। तो परमेश्वर का राज्य है, कंट्रोल शैतान काम कर जाता पिया, फिर सब परमेश्वर के राज्य को वधा रहे। मैं किसी के विरोध च नहीं, कोई विरोधी नहीं। परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर बदला लेगा, पर असं परमेश्वर ते परमेश्वर के राज्य को बदनाम तो ना करिए। एक मन होइए असी, अज का कलाम यही है, एक मन एक चित्त एक सोच एक इच्छा, जो परमेश्वर की इच्छा सी। परमेश्वर की इच्छा की सी? परमेश्वर की इच्छा सी कि मेरे लोग स्वर्ग च जान। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि असी बचाइए जाइए। पर कहते ना गड़बड़ी का आत्मा एक मन हो नहीं दिंदा, मां बेटी नूं नहीं, हसबैंड वाइफ नूं नहीं, बच्चियां नूं नहीं, अपना काम कर जांदा। अज पास्टर्स नाल कलीसिया एक मन नहीं हुंदी, विचार नहीं हुंदे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत वो करता है प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, ये चीज है। हालेलुया। पहले पढ़ांगे, समझ आ गई। एक ही बात को सोचना, परमेश्वर के राज्य लिए एक बात नू ही सोचना। एक मन का मतलब है एक ही बात को सोचना। हुण असीं जिद्दां शुरू किया है, ज्यादा नहीं मैं बोलांगी, ते असीं एक ही गल नू सोचदे पे, परमेश्वर तेरा राज्य आए, सामर्थ ना यूज कर, परमेश्वर ये वाला कलाम पूरा होवे। एक मन ही होए पे इस समय, एक सोच होए पे हैं, एक ही गल सोच रहे हैं, एक ही गल इकट्ठे होकर बोल रहे हैं, परमेश्वर के राज्य लिए। परमेश्वर आपका राज्य है, परमेश्वर राज्य है, उस जगह ते राज्य है। परमेश्वर तेरे दूत उस जगह ते उतरन जिथे तुसीं सानू साडे मनां दे विच पाया कि असीं ते परमेश्वर दा काम करिए जाके, है ना। एक होके एक चीज सोचनी, फिर ये चीज वधदी है। हालेलुया। फिलिपियों 2 अध्याय दी 2 आयत नूं पढ़ांगे। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। पौलुस की कह रहे हैं कि एक मन, फिलिपियो 2 अध्याय दी 2, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। कलीसिया दे विच भी की हो रहा सीगा, प्रॉब्लम्स आ रही सीगियां। हुण मैनू कोई कहंदा है पौलुस दा है, अपौलुस दा है, कोई पतरस दा है, कोई ये दा की हो रहा सी, एक मन नहीं हो रहा सी। उस समय चीजां शुरू हो चुकियां सी, पर पौलुस कलीसिया नू कह रहे हैं तो मेरा ये आनंद पूरा करो। कहना मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रहो परिवार दे विच, मसीह दे विच, कलीसिया दे विच। एक ही प्रेम, परमेश्वर नाल ही प्रेम रखो, जिदा परमेश्वर ने साडे नाल प्यार कीता, उदा सबना नाल प्यार करो। एक ही चित्त, फिर आंदा एक ही चित्त मतलब एक ही सोच, एक मन, एक ही चित्त होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए तुहाडा, और एक ही मनसा मतलब एक ही इच्छा। कदी अलग एग्जांपल देने कह रहे हैं, जो असी फैमिली चो कितने घूमन जाते हैं, कोई कहना मैं दिल्ली जाना, कोई कहना मैं बॉम्बे जाना, फिर की करते विचार के एक मन सोच करते हैं, नहीं उत्थे जाना सही है, बेनीफिट है। एक मनसा हुई, एक इच्छा होगी सारी फैमिली की, फिर ही निकलांगे। जो कोई कह रहे नहीं मैं उत्थे जाना, मैं उत्थे जाना, तो कदी भी नहीं चल पावांगे, मुश्किल हो जाएगी ना, रस्ते च लड़ाई हो जानी। पर जो असी एक इच्छा रख के परमेश्वर के राज्य दे विच चलना शुरू करते हैं कि मेरा लक्ष्य परमेश्वर आ है, मेरा लक्ष्य है कि मैं जीवन का मुकुट पाना, मेरा लक्ष्य है कि मैं उद्धार पाना। तुहाडा लक्ष्य की है? मेरी इच्छा है
कि मैं ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ਯ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ਯ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ਯ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, क्योंकि जिद्दां ही परिवार एक हो जाएगा शैतान बाहर जगह ही नहीं, जगह रहेगी किसी ना किसी नु यूज कर लेगा कि वध ना सको, कट्ठे बैठ के प्रेयर ना कर सको। जो वध रहे होंगे ना उन्हां दे घरां दे विच चीज जरूर हुंदी है। हसबैंड वाइफ लग जांदे, मां बेटी लग हो जांदी, सस बहू लग हो जांदी, बच्चे लग हो जांदे, क्योंकि चाहना ही नहीं ऐसी एक मन, एक चित, एक सोच, एक इच्छा परमेश्वर दी रखी। उस तो बाद देखो जो एक मन हो गए सी, इकट्ठे हो गए सी, ज्यादा नहीं है क्योंकि कलाम बनाना थोड़ा टफ हुंदा है वाला, थोड़ियां है ज्यादा भी है, ठीक ठीक आया था पर ज्यादा भी नहीं। हम एग्जांपल दवांगे जिन्ने जिन्ने जने जो एक मन एक इकट्ठे होए उत्थे की होया, एक मन होए, एक मन होए। रसूलां दी किताब 2 अध्याय उहदी पहली आयत नूं पढ़ांगे ते उस तो बाद 4 दी 32 नूं पढ़ांगे। ਜਾਂ ਪੈਂਤੀਕੁਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ, ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। गॉड ब्लेस यू। पहली आयत पढ़नी सी, किसी एक जगह इकट्ठे होए, सब इकट्ठे होए, एक मन होए, एक मन होके इकट्ठे होके जिदों उन्होंने स्तुति आराधना शुरू की, परमेश्वर की प्रार्थना की, एक मन, एक सोच, एक चित्त इकट्ठे होए, उत्थे कहंदे परमेश्वर की अग उतरदी है। कहंदे छोटी जी चिंगारी जांदी है उपर, वड्डी अग उतर के आंदी है। और किन्ने जने सी? 120 जने सी, ज्यादा जने नहीं सीगे, 120 जने सी, पर की सीगे? वो एक मन सीगे, एक सोच सीगे। परमेश्वर तो की मांग रहे सी? सामर्थ मांग रहे सी, परमेश्वर ते राज्य नूं फैलाउण दा सामर्थ मांग रहे सी। और परमेश्वर ने ओ 120 लोकां दे उत्ते की होया? अग उतरी, छोटी चिंगारी गई और अग उतरी स्वर्ग तो की होया? हालेलुया। सारे पवित्र आत्मा नाल भर गए, सारे चंगे हो गए, सारे आजाद हो गए। हालेलुया। खुदा महान महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, किड्डे वड्डे काम है। फिर ਇਹਦੀ 32 ਆਇਤ ਚ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਇੱਕ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ। हालेलुया। हालेलुया। 32 ची लिखे विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मत थी। एक चित्त, जो विश्वास करने दी मंडली सी, एक चित्त सी, एक मन सी। जिन्ना भी पढ़ांगे एक चित्त एक मन नूं ही पढ़न जा रहे, समझन जा रहे, एक ही इच्छा सी कि परमेश्वर दे राज्य नूं वधाना, परमेश्वर दी इच्छा नूं पूरी करना, परमेश्वर दी योजना नूं पूरी करना। यही एक चित्त सी, यही एक मन सी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझा था। हालेलुया। एक मन सी, एक दूसरे दी हेल्प करदे सी, मदद करदे सी। क्यों? परमेश्वर ने उन्होंने मन च अपनी इच्छा पाई सी कि वो परन ते परमेश्वर दे राज्य नूं फैलान, सुसमाचार सुनान परमेश्वर दा जगत दे अंत तक, छोर तक। उन्हां दी सोच हो गई सीगी, सब कुछ छोड़ दिता सीगा। जिन्नी देर तक असीं एक मन एक सोच नहीं होवांगे, उन्नी देर तक असीं परमेश्वर दा राज्य नूं नहीं बधा सकते। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਹ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਰਗਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਤਰਸ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਖੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ।
ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ पूरी करना ਸੀ, जो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सिखा के किसी, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग पे, आपका नाम पाक और पवित्र माना जाए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे आपकी इच्छा इस धरती पे पूरी हो। हालेलुया। रोज इस प्रार्थना ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। रोज इस मैं जिन्नी बार भी उठती, जिन्नी बार भी बैठती, मेरे मुंह च प्रार्थना, परमेश्वर जिद्दां तुहाडी इच्छा स्वर्ग च पूरी हुंदी वैसे तुहाडी इच्छा धरती ते पूरी होवे, जल्दी पूरी होवे, जल्दी तुहाडा राज्य आए। इस समय शैतान दा राज्य है, इसलिए सानू एक मन, एक चित, एक सोच, एक विचार नहीं करन देंदा, इकट्ठा नहीं होण देंदा। हालेलुया। बहुत जरूरी है, मैं एग्जांपल्स दे रही हूं। नहीं है ते हो जाना, एक दूसरे की देखभाल करो, एक दूसरे नाल प्यार करो, एक दूसरे की फिक्र करो, फिर देखो थोड़े रास्ते कदर। बाइबल च आयत लिखी है, मैं लिखी नहीं, कहते जो दूसरों का रास्ता साफ करता है ना, दूसरों की खेती सींचता, उसकी खेती अपने आप ही सींची जाती है। मैं दूसरों की खेती सींचती इत्थे पहुंच गई है, मैं दूसरों लिए रोजे रखते रखते खुदा ने मैनू इत्थे पहुंचा दिता। यहोशू 6 अध्याय, यहोशू 6 अध्याय, हुणे हैगा जो भी कोई चीज शुरू करते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, 네ਗੇਟਿਵ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਹੋਸ਼ੋ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾ ਗਜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਾਂ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਸੀ, ਗਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਯੋਧਾ ਤੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, पर यहूदी दी दीवार सीगी। एक उन्होंने की किया सी परमेश्वर ते यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, एक मन होए, आज्ञा नु मन्निया, जो किया चाहता है एक कलीसिया दे विच एक मन एक चित होना बहुत जरूरी है, ठीक है। याजक पास्टर्स दा कहना मनना बहुत जरूरी है, अगर वो सही कह रहे हैं। कि लिखिए आगे दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए। वो दीवार ते गिरनी नहीं, एवं चक्कर लाई जाते पे। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। शैतान, पर परमेश्वर ने की क्या कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, 네ਗੇਟਿਵ ਬੋਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਫੋਨ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਪਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ। मैं नहीं बैठना, भूलना नहीं, क्योंकि बहुत वड्डी दीवार गिरन जा रही है। आमेन। बहुत वड्डी, किसी दी जिंदगी च जल्दी काम होना, किसी दी जिंदगी च देर ना होना, पर होना जरूर है। पर मुंह चो कोई भी इदा दा गलत शब्द थोड़े मुंह चो ना निकले। खुदा ने इसीलिए शायद मैनू कलाम दिता। हालेलुया। ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करनी। जो परमेश्वर कहोगे उदो ही जय जयकार करनी, उस तो इलावा नहीं। और रोज एक चक्कर लगाते सी, चुपचाप बह जाते सी, रोज चुप तुर्की फूकते जय जयकार करते सी, रोज एक चक्कर लगाते सी, बह जाते सी। 7 दिन उन्होंने किया, पर जो चक्कर लगाते सी उदो बोलते नहीं सी, चक्कर लगाने वेले नहीं बोलते सी। हालेलुया। फिर बीच पड़े हैं, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूकने लगे। तब लोगों ने नरसिंगों का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पना नींव से गिर पड़ी, नींव सवेद नीया समेत तो शहर पना गिर गई जो लास्ट चक्कर सिका।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਚੱਕਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਚੁੱਪ, ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ चलो, एक मन एक चित होके। प्रतिफल परमेश्वर में, मैंने तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मैं तो 2-3 घंटे बैठ रहे हैं। नो, देना कम परमेश्वर ने प्रतिफल। हालेलुया। और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर ले लिया। दीवार भी देखो, बाहर वाली साइड नहीं गिरी, अंदर वाली साइड गिरी। बाहर वाली साइड परमेश्वर ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ। ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਦਲੇਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ। अगर दीवार गिर सकती है, जरूर बदलेगी। परमेश्वर महान महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसीलिए पौलुस कह रहे, एक मन, एक चित्त, एक मनसा, एक इच्छा रख के परमेश्वर से चलो। फिर देखो शैतान करेगा। किसी टाइम सानू किसी दे अगे शून्य भी होना पैना अपनी फैमिली दे अगे कि शैतान वर्क ना कर सके। डाउन भी होना पैंदा है, अपने आप नू मारना भी पैंदा है, पर अपने परिवार ना एक मन रहो, अपनी फैमिली ना जिथे रह रहे, दो सोच दो विचार ना रखो। अमोस 3 अध्याय उहदी 3 आयत नू पढ़ांगे। खुदा दा थैंक्स करदे हैं, परमेश्वर दा आत्मा इत्थे मौजूद है। अमोस 3 अध्याय उहदी 3 आयत, 3 आयत 3 नहीं पढ़ांगे। ਹਾਂਜੀ। ਭਲਾ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। चल सकते हैं। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना। इसका मतलब जो एक वड्डी कलीसिया, वड्डी चर्च कुछ भी करना है तो सानू एक मन, एक चित, एक सोच होना पैना है परमेश्वर दे जड़ दे राज शैतान दे राज्य नू हिलाउण लई। पर अज एक मन एक सोच नहीं है। जो नहीं है ना, वो सोचना, वो सोचना। हालेलुया। कहंदे अपने लिए ते सब जींदे हैं, दूसरे लिए जीन दा मजा ही अलग होता। इसलिए हालेलुया। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਜਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਨehemiah ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, वेदी का पूर्ण निर्माण, वो इकट्ठे होए, उन्होंने अपने आप को की किया, शुद्ध किया, पवित्र किया परमेश्वर दे अगे। एजरा नehemiah तो पहले बुक है, 3 अध्याय की पहली आयत। जब 7वां महीना आया, इजरायली अपने अपने नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। किस लिए इकट्ठे हुए? किस काम लिए इकट्ठे हुए? जो उन्होंने गलती की सी, जो उन्होंने पाप किया सी, ओदे मनन लिए इकट्ठे हुए। इकट्ठे होके भी जो असी परमेश्वर दे अगे अपने पापां नू, अपने ओनू मनदे ते परमेश्वर सानू माफ कर दे। इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। इकट्ठे होके ही व्यवस्था सुनाई गई सी, जो नehemiah च पढ़िया। इकट्ठे होके ही उन्होंने की कीती सी, दीवार बनाई सी। इकट्ठे होके ही परमेश्वर दा मंदिर बना पाए सी। क्योंकि अगर तुसी इस बुक नू पढ़ोगे, इहदे भी बहुत विरोधी सीगे, इहदे भी बहुत विरोधी सीगे कि नहीं असी मंदिर नू बना नहीं देना, चिट्ठी जांदी सीगी। पर उन्होंने की किया, जो परमेश्वर दा मंदिर बनाने लगे, जो लेवी सीगे, जो याजक सीगे, अज याजक भी इकट्ठे नहीं ना, पास्टर भी इकट्ठे नहीं। पास्टर दा ही विरोधी है, मसीह दा ही विरोधी है। शैतान नू काम करन दी जरूरत ही नहीं, आप ही काम हो जा रहा है ना, आप ही हो जा रहा है ना।
ठीक है ना। 6 ਦੀ 20 पढ़न जा रही है, इजराइल 6 ਦੀ 20 पढ़न जा रही, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया। शुद्ध किता, एक मन हो गए, याजक एक मन हो गए, लेवी एक मन हो गए। की करना सी, परमेश्वर दा मंदिर बनाना सीगा, है ना। इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। उन्होंने बधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए अपने अपने लिए फसे के पशु बलि के, फसे के पशु एक मन होके परमेश्वर दी। बाइबल च लिखा ना, जे तू मेरी थैंक यू लॉर्ड, खुदा बहुत मशहूर है। हाले परमेश्वर ने क्या कहते, जो तू मेरे वेदी को लाए, अगर तेरा भरा नाराज है ते ओनू मना लै। हुणे परमेश्वर दी वेदी को जा रहे सीगे ते याजक लेवी एक मन होए, अपने मना नू शुद्ध किता, तां ही मंदिर बन सकिया, दोबारा बन सकिया, नहीं ते मंदिर नहीं बनना सीगा। इसीलिए क्या गया कि सारियां दा एक मन होना बहुत जरूरी है। मैं लास्ट आयत नू पढ़ांगी, 2 आयतां रखियां, लास्ट पढ़ांगी। अज सोचना असी हैगे एक मन परमेश्वर दे राज कि ये चर्च दे चर्च सिर्फ अपनी बरकत ਲਈ जा रहे हैं, अपनी उस ਲਈ जा रहे हैं। याद रखना, जिन्नी देर तक तुसी परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ नहीं, परमेश्वर ਦੀ योजना ਨੂੰ नहीं ਜਾਣੋਗੇ, परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ नहीं ਜਾਣੋਗੇ, दूसरी चीज दे जे तुसी परमेश्वर ना एक मन नहीं होगे, परमेश्वर ना एक मन भी होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से एक चीज सिखांदी और सिखांदी आई है, क्योंकि मैं सीखी, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਦੀ परमेश्वर को अगर बरकत लेनी ना, परमेश्वर ਨੂੰ खोजना, परमेश्वर ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ, परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰਕਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ गुस्सा ना करना, सानू बेबी मिल जाए, सानू कार मिल जाए, सानू गड्डी मिल जाए, ਅਸੀਂ ठीक, ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ योजना, परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ परमेश्वर ने एक मन है परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ। परमेश्वर ने चुनिया सानू किस लिए है, अपने राज्य ਲਈ चुनिया, अपने मन ਨੂੰ ਆਨੰदित ਕਰਨ ਲਈ चुनिया कि ਅਸੀਂ अपने मन ਨੂੰ आनंदित करना है। जो परमेश्वर ਦਾ मन आनंदित है, समझ लो साडा मन आनंदित है। बाइबल लिखे ना, परमेश्वर की आत्मा को शौकित मत करो, क्योंकि छुटकारे की छाप है। मेरे मन को आनंदित करो। जो ਅਸੀਂ अपनी सोच ਨੂੰ बदल ਲੈਂਦੇ ना, सीरियसली चीज़ां पिछे पै के मिलदी, बहुत सताव आंदा है। शैतान बड़ी कोशिश करता है कि कलीसिया ना बधे, एक मन नहीं होण दिंदा, एक सोच नहीं होण दिंदा, परमेश्वर दे राज्य ਨੂੰ ਵਧਣ नहीं दिंदा, फूट पा दिंदा। ਉਹਨਾਂ ਚ भी पई सी ना परमेश्वर ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚ, ਵੱਡਾ ਕੌਣ, ਵੱਡਾ ਕੌਣ, ਵੱਡਾ ਕੌਣ। परमेश्वर ਕਹਿੰਦੇ जो अपने आप ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ करेगा, ਉਹ परमेश्वर ਦੇ राज्य ਚ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। जो अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡਾ करेगा, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। परमेश्वर ਦੇ राज्य ਚ हमेशा अपने आप ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖੋ। इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हुण दुष्टां ने भी युक्ति की, प्रकाशित वाक्य दुष्ट दी युक्ति दी सिखण जा रहे सी कि उन्हें किद्दां युक्ति की। फिर उस तो बाद फिर पॉजिटिव ही आयतां लवांगे। हालेलुया। प्रकाशी वाक्य 17 अध्याय उदी 13 और 17 आयत में पढ़ांगे। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਤ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਲੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਤ, ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਤ ਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕੋ ਮਤ, ਇੱਕ ਮਤ, ਇੱਕ ਮਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। मैं 13 इसमें पढ़न जा रही हूँ, 12 तो पढ़न जा रही है। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं।
जो 10 सींग तूने देखे वो की है इस धरती दे 10 राजा है। ध्यान ना समझने सुनो, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, वो 10 राजा नु राज्य नहीं मिलिया, पर उन्होंने एक नु की लिखा, पर उस पशु के साथ बड़ी घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार उसे दिता। उस पशु नु, उस छोटी एक छोटे राज्य नु की दिता, 10 राजा ने अपना, कह लो कि जिदा यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, रूस ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, इजराइल ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, मत हो रहे, 2-2 देश बदलते जा रहे हैं, हो रहा नहीं, की हो रहा की ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਤੀ, ਤੂੰ ਲੜ, ਜਿੱਦਾਂ रूस लड़े, बाकी 10 देश ਉਹਨੂੰ अपने की दोगे, अपनी मिसाइल्स दोगे, अपना अधिकार दोगे। इस तरीके ना तुसी इजी समझ जाओगे, पैसा लगाओगे, तू लड़ाई लड़, मैं पैसा देना। हालेलुया, लिखिए ना 13 पे बड़े ध्यान से ना, ये सब एक मन होंगे, ये सब कौन, दुष्ट एक मन होंगे, और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। केनु अधिकार और सामर्थ, ताकत केनु दे देनी, पशु नु दे देनी, जो परमेश्वर ना, परमेश्वर दे लोकां नाल लड़दा है। अगर 13 आयत पढ़ी, वह मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, पर वो इकट्ठे होके मेमने नाल लड़नगे, कल्ले ते नहीं गए। दुष्ट 10 राजा, जो एक एग्जांपल भी पढ़ांगे, यहोशू नाल भी लड़न आए, किन्ने लड़न आए, मैं देश गिने नहीं, जल्दी जल्दी च मैनू आयत मिली सीगी, हुण गिन लवांगे। यहोशू 9 अध्याय दे विच ना पहली आयत तो दूजे, उस प्लीज गिन के रखना, किन्ने किन्ने राज्य लड़न आए सी, कोई गिन लेना ओनू, मैं गिने नहीं सी। 9 अध्याय यहोशू दी पहली आयत नू, फिर उत्थे चलांगे। 17 च की लिखे, एक अद्धा ही पढ़े 17 च, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में ये डालेगा कि वह उनकी उसकी मनसा पूरी करे। परमेश्वर उन्होंने मन च पांदा, इकट्ठे होवो। हुण एक असीं पढ़दे हैं ना, गोगा और मोगा दी लड़ाई, इत्थे लिखी होनी, आजकल कहंदे ना कि वो लड़ाई होनी है, प्रकाशित वाक्य च भी लिखिया होया कि वो हो गए, इकट्ठे हो गए। मैं वो नहीं पढ़ पाई, क्योंकि जगह ते इकट्ठे होना है, और सीरियसली सच्ची लड़ाई होनी ही होनी है, वो इजराइल दे विच होनी है, बड़ी भीड़ हैगी है। गोगा और पता नहीं की कहंदे, दूसरा मैनूं हुण याद नहीं आ रहा, पर प्रकाशित वाक्य दे विच है कि एक जगह ते इकट्ठे होए और उन्होंने लड़ाई की, देश इकट्ठे होने, लिखे है ना, जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले, तब तक, बड़े ध्यान से सुना, तब तक एक मन होके अपना अपना राज्य उस पशु को दे देंगे। एक मन होके, एक मन होके, तब तक एक मन होके। दुष्ट एक युक्ति बनांदा है, ते दुष्ट नाल किन्नियां सेना इकट्ठियां हो जांदियां, अंधकार दीयां शक्तियां इकट्ठा वर्क करदियां। जो मैं पढ़ रही सी ना, मैं ना बहुत पहले प्रकाश में कि प्रभु जी, दुष्ट लोग किद्दां इकट्ठे होके काम करदे ना, ਅਸੀਂ अच्छे लोग काम ही नहीं करते, क्योंकि साडे अंदर जेलस है, साडे अंदर विरोध दा आत्मा है, साडे अंदर जेलस दा आत्मा है, और दिलो जान नाल बुरे लोग कदी देखना, जादू करन वाले कदी एक दूसरे दा विरोध नहीं करते, कदी एक दूसरे नूं बुरा नहीं कहंदे, जादू वाले कहंदे ओदा काम है, ओदा 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 हैगा वधिया जो ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੋੜ भी नहीं तोड़दे, क्योंकि उन्हें पता है। भजन संहिता 85 83 दी 83 85 दी 3 83 दी 3 आयत 5 आयत सॉरी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟ ਗੰਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। उन्होंने एक मत होके युक्ति निकाली कि प्रभु यीशु मसीह ने पकड़न दी। फरीसियां ने, शास्त्रियां ने बैठे सी, सभा कीती सी, मैनूं हुण खुदा दा आत्मा दी दिखा रहे और सिखा रहे हैं, मैं नहीं लिखी सी ना मैं पढ़ी सी।
कि उन्होंने युक्ति निकाली कि प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕੜੀਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ, याजक फरीसी ਰਾਤੀ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। युक्ति ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, योजना बनाई ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੀਏ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਚਾ ਬਾਂਧੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਚਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ। पर फिर एक गल कहूंगी, जे अस्सी सारे एक मन एक सोच है, याद रखना दुष्ट साडे विरुद्ध नहीं आ सके, नहीं कर सकेगा। यहोशे जो लड़ाई करके यरीहो दी दीवार तोड़ के अगे निकलिया ना, उत्थे ते राजे डर गए। जो 9 पढ़ रहे हैं असी जा रहे एग्जाम्पल, किन्ने राजे सी जी किसी ने गिने? पास्टर जी 8। 8 ओके 8। ये सुनकर हित्ती, अमोनी, कनानी, किन्ने देश आए ने नीचे के देशों में और लाबानोन के सामने से महासागर से तट पर रहते थे, वह एक मन होकर यहोशू इजराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। 8 देश 8 ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। फटाफट किसी दी गल होई नहीं, उन्हें बपतिस्मा ले लिया, फटाफट अगे तो अगे गल चलदी। अपनी ही कलीसिया दी गल्लां बाहर निकल रही हैं, अपने ही लोकां दी गल्लां गैर मसीहां नाल कीतियां जा रही हैं। है सी परमेश्वर दे राज्य। अगर कोई छुपा रहा है, अगर कोई कह रहा है कि मेरी गल हले मैं नवा नवा आया, किसी नूं ना दसो, ना रोला पाओ, तुसीं परमेश्वर दे राज्य नूं बिगाड़ रहे हो। किसी ने अगर चोरी बपतिस्मा ले लिया तो ਉਹਦਾ ਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ 4 ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਚਾ ਸਕਦੇ ਪਏ। ਦੁਸ਼ਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। बहुत गवाहियां बनिया हुई, पर पूरियां हो गई फिर ही शेयर करिए। अद्धियां पचंदियां थोड़ी अपनी तारीफ लिए शेयर कर लेनी। अज सोचना ਅਸੀਂ परमेश्वर दे राज्य ਲਈ ਕਮਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿਤਨੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫੂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ? कलाम सख्त हुंदा, कलाम लगदा है। जे लगदा है, जिन्हों लगदा है ना, याद रखना परमेश्वर कह रहे चेंज हो गए, क्योंकि तेनू लग रहा कलाम। जिन्हों लगदा है असीं परमेश्वर दे राज्य नूं वधाउण लई एक मन, एक चित, एक सोच, एक विचार हैगे आ। कोई इकट्ठे हुए कहते वह एक मन होके यहोशू इजराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। बुरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छे लोग, मसीही लोग इकट्ठे ही नहीं होंगे। ਉਹਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ आप ही लूंगा, मैं क्यों करा, मैं क्यों लवा, मैं क्यों कवा। हालेलुया। इसलिए जे मैं प्रकाशी वाक्य 17 जो पढ़िया सी, मैं खुदा मैं इस कलाम ਨੂੰ जरूर शेयर करांगी कि अगर दुष्ट इकट्ठे हो जाते हैं, आत्मिक सेना इकट्ठी होके काम करती है, तो मैं क्या असी क्यों नहीं इकट्ठे होके कर सकते, एक मन एक चित होके। हालेलुया। पहली कुरंथियां पहला अध्याय ओदी 10 आयत। पहली कुरंथियां ਹਾਂਜੀ। हे ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟਕ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਮਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। गल समझ आ गई। कलीसिया में फूट उस समय भी सीगी 2024 पहले 2024, ठीक है। पहले प्रभु यीशु मसीह ते जान तो बाद भी फूट पैनी शुरू हो गई सी कलीसिया दे विच। कुरिन्थी दी कलीसिया नूं की लिख लिया पौलुस, हे भाइयों मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। मैं भी कलीसिया दे अगे विनती करदी पई हां, तुहाडे अगे जो बाद चों यूट्यूब च सुनणगे उन्हां दे अगे विनती करदी पई हां। निवेदन, विनती, प्रार्थना, निवेदन कर रही हैं, विनती कर रही हैं कि तुम सब एक ही बात कहो। किसी उद्धार ले जा रहे हैं परमेश्वर को। एक ही बात करो, तुम में फूट ना हो, दो मन ना बटे हों, एक ही मन हो गए, परंतु एक ही मन और एक ही मत होके, मतलब एक ही सोच, एक मन, एक सोच, एक इच्छा, एक चित लैके की करो, एक ही मत होकर मिले रहो, कट्ठे रहो, कट्ठे। कहते जिस राज्य दे विच फूट हुंदी है ना, दूसरे नूं जोर लगाना ही नहीं पैंदा। पेती जाके दस दिंदा है ना, जिस राज्य में फूट हो, जिस राज्य में फूट हो, जिस घर दे विच फूट होवे, पेत अपने आप ही बाहर निकल जाता है। मैं अपने उन्हां पुरानी चीजां दे विचों क्यों बोलां, चुप ही रवां ते चंगा है। घर का भेदी लंका ढाए। बने रहो, निवेदन है, बिनती है जो पौलुस कह रहा सी। अज जज करना तुसी मसीह दे विचों कि गैर मसीहां नाल मसीहां दी बुराई करदे हो। मसीहां, मसीह लोग गैर मसीहां नाल की करदे पे, मसीहां दी करो तुसी बुराई खूब करो, ठीक है, मैं नहीं मना करती, आदत है, पर मसीहत दी बुराई ना करो, मसीहत दे लोकां दी ना करो जो मसीह दे विच है। कहना आप ते सके नहीं है, भैन भैन दी बुराई करी जा रही है। मजा बड़ा आंदा ना, फिर वो डोर ओपन हुंदी, फिर चीजां आंदियां, घर च जाके फूट पानी ते बड़ी ईजी है ना। केड़ा मसीह करैक्टर है, एक मन हो मसीहां नाल, अपने मसीहां नाल नहीं एक मन हो, गैर मसीहां नाल एक मन हो गए हैं। ਅਸੀਂ गैर मसीहां नाल एक चित्त हो के बैठे हुए हैं। अपने मसीहां ਨੂੰ ਤੇ ਛੋੜ ਹੀ ਦੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਜੋ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। हालेलुया। फिर एक और लास्ट आयत पढ़न जा रहे हैं, पहली कुरिन्थियां 7 अध्याय ओदी 35 आयत। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं, पौलुस वे कह रहा है, मैं भी तुहानू कह रही है। मैं ये बात तुम्हारे लाभ के लिए कहता हूं कि ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, इसलिए कि जैसे शोभा देता है वैसे ही किया करो। शोभा की दे रहा है कि गैर मसीहा दे विच अपनी मसीहत दी बुराई नहीं करनी। मैनू ना पिछे ना एक बड़ी यूट्यूब ते एक चीज वायरल हुई सी, मेरी दीदी ने स्पेशल मैनू भेजी। एक पास्टर सीगा, खुदा मैनू माफ करे, मैं पास्टर की बुराई नहीं कर रही, पर मैं गल कर रही हूँ जो मैनू खुदा याद ला रही। कोई लेडीज बीमार गई, कहंदा तुसी इन्ने पैसे दे दो, तुहाडा ना स्वर्ग दे विच प्लाट ले लैंदे आ। उन्हें इन्ने पैसे देते, कहंदा प्लाट तुसी ले लिया हुण स्वर्ग च, हुण नीआं भरन नूं पैसे दे दो। उन्हें बेचारे भोले बंदे उन्हें नीआं भरन नूं पैसे देता। कहंदा हुण होर पैसे चाहिए, लैंडर उप जनानी बीमार दे बीमार। जो मेरे तक भी ये वीडियो पहुंची, मेरी दी ने कहती देख अजकल लोकी किदां करदे पे मसीहत। जो मेरी सिस्टर ने मेरी चाल देखी सी ना, मैं कहा बिल्कुल सोनी है। फिर मेरे घराने ने मसीहत नूं पसंद करना शुरू किया सी कि पैसे लंदी पर अपने उत्ते 1 रुपया नहीं खर्चदी पई। पहली गल ते मंगदी नहीं ना, लैंदी है।
ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਸੀਹਤ पे लिखे ना, जैसा शोभा देता है वैसे ही किया करो, जिस ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ना होवे। तुम एक चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। एक चित्त, एक मन, एक सोच, एक इच्छा, एक विचार होके की करो, परमेश्वर दी सेवा करो। विरोध आत्मा अपने अंदर ना आंदो, विरोध आत्मा अपने अंदर ना आंदो। जी समझ गए तुसी जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मेरा सीधा कली पे पढ़ांगी। विनती है कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, प्रभु में एक ही मन, एक ही मत होकर मैंने लोगों। पहली कुरिन्थियां पहला अध्याय 10 आयत। ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੜੇ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ। ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਨਾ ਖੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਗॉड ब्लेस यू, गॉड बलेस यू।